Thank you, sir. I will continue this topic, sir. One girl or boy, she or he was in hostel, NVS hostel. She is having so much of homesick. Because of that, she cannot able to focus on the studies. At that situation, what you will do, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for this question. In the life of hostel or boarding school, it happens in the beginning, especially. Students feel homesickness because they used to live in their home atmosphere and with their parents, sibling also. In that time, as a teacher, my responsibility is to give them a very comfortable environment and according to time, sometimes friendly and sometimes strictness I would like to show. And whenever we get any free period or like games period, I try to involve myself also with them. In the time of games period, I would like to play with them. In the time of dance period, I would like to dance with them, sing with them. And whenever we perform any activity in classroom related to chapters also, I would like to take part themselves. In that time, students uh, feel very comfortable with me in the atmosphere of school and always suggest them to make friends, good friends, and live in a good company. In that time, they will have some friends also. They will have a uh, teacher come mother also. In that time, gradually uh, we cannot say that they get rid from the homesickness, but gradually they feel very comfortable in the school atmosphere. Thank you, ma'am. Are you satisfied? Poonam madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why? Have you a Because I question am for also in hostel. Very good. When the teacher comes and just they hug the student, the small students, they will literally feel motherly good, ma'am. Thank you, ma'am. Definitely. Poonam madam, Yeah. ask your question from Sangeeta madam. Okay. Hello, Sangeeta ma'am. Hello, ma'am. Hello. Okay, ma'am. Hello, My ma'am. question is, yes, ma'am. Ma'am, if you will be given the opportunity to suggest one improvement in the Indian education system, what would you be and why? मैम आपको Ma'am, एक repeat. अपॉर्चुनिटी यस मैम माय क्वेश्चन इज आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई एक इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं तो आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे डिड यू गेट माय क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके I will improve the children's psychology, ma'am. At first, I will improve focus on the psychology of the students. So, why the students should be shy? Why the students should be fear about the studies? एजुकेशन सिस्टम से क्यों थोड़ा स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका साइकोलॉजी में इम्प्रूव करना चाहूंगी मैडम. आफ्टर दैट जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका उनको थोड़ा टीचर्स फ्रेंडली बनाना चाहूंगी मैडम. जो फियर रहता है जो साइनेस रहता है वो क्लास में टीचर फ्रेंडली होंगे तो अच्छा होगा मैडम. ये थोड़ा इम्प्रूव करना चाहूंगी. फ्रेंडली मीन्स इन लिमिटेड मैनर मीन्स पूरा फ्रेंडली होंगे तो टीचर को स्टूडेंट में डिफरेंस नहीं रह जाएगा. तो टीचर स्टूडेंट में लिमिट रख के फ्रेंडली होना चाहिए. ये थोड़ा मैं इम्प्रूव करना चाहूंगी. और एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर हो सके तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में इम्प्रूव करना चाहूंगी. जो ट्रेडिशनल सिस्टम से आउट होके डिजिटल लर्निंग में ज्यादा फोकस करना चाहूंगी मैडम. थैंक यू. Sangeeta madam, ask your question from Manjeet madam. Or Manjeet madam want to add something? Yes, madam. Unmute कीजिए. Unmute is in your end, madam. यस सर. मैम अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो सबसे पहले मैं जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड हैं उनपे जो अगर जब उन्हें त्रिभाषा फार्मूला लागू किया है उनसे रिलेटेड अगर ऐसी सिचुएशन अगर आगे भी आती है सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले हमें
कोई भी नीति लागू करनी है, चाहे हमें कुछ भी बनाना है स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए, सबसे पहले हमें उन सीधा ही स्टूडेंट्स पर थोप नहीं देना चाहिए। हमें टीचर्स की और जो स्टूडेंट है, हम सभी स्कूलों की तो राय नहीं ले सकते, पर हमें जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं, सबसे पहले उन थोड़े से स्कूल होंगे जहाँ हम उन पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब हम उनकी ओपिनियन लेंगे, क्योंकि जो टीचर होते हैं सबसे करीब वो अपने स्टूडेंट्स के होते हैं। उनकी साइकोलॉजी होती है, उनकी कोई भी नीड है, टीचर सबसे अच्छी तरह समझता है। अब जो एक तरफ और हाँ, जब जो टीचर हैं वो भी बर्डन पर आ जाते हैं, उनके दिमाग पर भी बहुत सा बर्डन है। जैसे टेट है, अब जो पहले वाले टीचर थे उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि आप जब टेट क्लियर होंगे तभी आपको रखा जाएगा। ऐसे में क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी पढ़ाई पर उनका असर पड़ेगा। टीचर होंगे वो अपनी जो तैयारी है उन पर लग जाएंगे, और जो स्टूडेंट है उनकी जो अपनी पढ़ाई है उन पर असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी कोई भी नीति लागू होती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके माइंड पर पड़ता है। जब उन्होंने त्रिभाषा लैंग्वेज चालू की है, वो 1968 से भी थी और 1986 में भी थी, और जो हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स है उन्हें लागू नहीं होने दिया। इसके लिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम उन्हें थोड़े ही एरिया में इम्प्लीमेंट करें और फिर उनका रिजल्ट देखें। थैंक यू मैम। Very good, Manjeet madam, very good. And it was really appreciated all over. Poonam has sent you flowers. We have sent you hearts. Great. Now we are giving you chance to ask one question from Pooja. Yes, Pooja ji. सर मैंने पूछना है? जी मैडम। ओके मैम, हेलो मैम। मैम रिसेंटली एक गर्ल के साथ हुआ है। एक गर्ल थी 17 ईयर्स ओल्ड। उसने स्कूल के बाद अपने घर गई और उन्हें सुसाइड कर लिया। और उनका कहना था, उनके वीडियो बना ली पहले अपने सुसाइड करने से, कि हमें टीचर है उन्होंने इतना ज्यादा परेशान किया, हमारे हमें हम फीस नहीं दे सके, उन्हें फीस के लिए हमें टॉर्चर किया। अब जो उनके पेरेंट्स है वो लीगली उन पर कहते हैं कि दबाव डाल रहे हैं उन पर कोई एक्शन लिया जाए। ऐसी स्थिति में आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे, अपनी स्थिति को हैंडल करोगे? क्योंकि आपने तो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने तो फीस का बच्चों को कहना ही पड़ता है, और उनका कहना है कि आपके दबाव में ही आकर सुसाइड किया है। तो इस स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे? यस पूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने निभाई, क्योंकि मुझे भी मेरे जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी हायर अथॉरिटीज होंगी, उनसे ऑर्डर मिले होते हैं कि आपको फीस पूछनी है। तो व्हाट आई डिड वाज आई डिड माय वर्क एंड मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ स्टूडेंट पे ही पूरा प्रेशर डाल रही हूँ, कल से तुम फीस लेके आओ लेके आओ। समटाइम्स आई शुड कॉल द पेरेंट्स आल्सो कि आपके वार्ड ने जो है फीस अभी नहीं कंप्लीट हुई है, तो यू शुड कम टू विजिट और टॉक विद प्रिंसिपल वट एवर द प्रॉब्लम इज। मतलब इस इंसिडेंट तक आने तक हमें वेट ही नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया। पहले से ही हमको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अगर मतलब सबके घर में इश्यूज होते हैं, सो वी शुड द पेरेंट्स शुड कम टू स्कूल एंड टॉक विद हायर अथॉरिटीज वट एवर दे टेक द एक्शंस अबाउट, मतलब उनकी फीस थोड़ी कम हो जाए, या फिर जो भी हायर अथॉरिटीज है वो बोल दे कि हाँ मतलब फीस जो भी मतलब डायरेक्टर्स है वो उनको फीस माफ कर दे अगर स्टूडेंट की तरफ से नहीं भरी जाती है। तो वॉट एवर दे टेक एक्शन, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, मैं एक दो बार स्टूडेंट से बात करूंगी अगर मतलब और भी कुछ रीजन हो सकता था क्या उसकी सुसाइड के पीछे, क्योंकि मुझे जब तक लगता है कि सिर्फ फीस की वजह से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड तो आई विल लुक आउट फॉर अनदर रीजंस, मतलब अगर कुछ हुआ तो
देन आई विल टॉक विद पेरेंट्स. अगर सच में ये मेरी वजह से मतलब हुआ होगा तो आई विल डेफिनेटली अपोलोजाइज टू पेरेंट्स एंड मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब वो तो अब कम तो नहीं हो सकती थी, बट आई विल ट्राई कि ऐसा दोबारा ना हो. यस मैम. Very nice. Thank you, Poonam, you ma'am. want to add something? Yes. Hello, ma'am. Are you getting my voice? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If a student who was 17-year-old committed a suicide because of a teacher's name in that time, I would like to share some solutions for this type of situation. The first solution is to remind the fee is not the responsibility of any teacher or class teacher, particularly. That is the responsibility of fee management or fee in charge. In my school, separated fee admission, separated office for fee for the admission. In that time, if I have 50 students in my class who pay the fees, who doesn't pay the fees, that is not my responsibility. In my eyes, all are equal. Some are RT students, some completed their fee in the beginning of the month and get some, we can say, some percentage of discount also. In that time, not the responsibility of teacher to call him students and to parents also. First of all, it is a separate responsibility for the fee in charge members. In that time, if the student face difficulty, or first of all, that office in charge member, they are requested not to tell about the fee to the particular students. That is the rule of our school. That means उनका fee pay हुआ या नहीं हुआ, ये बात बच्चे को कभी नहीं बोलना है. बच्चे के पास ये बात कभी नहीं जानी चाहिए. We should call to the parents and not in the last term time, in the last month of the year. After completing the 5 or 6 days, because it is the rule of school that we take the fees before 10. Before 10 means हर मंथ की 10 तारीख से पहले फी सबमिट हो जानी चाहिए, ऐसा रूल है. लेकिन बच्चे के पास कभी नहीं बोलना है कि आपकी फी पे नहीं हुई है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाई दे pay the fee, why they don't, because parents face different situation in that time. Enough, Every enough, family madam. has Enough. Pooja ji, have your question for Savita. Savita से क्वेश्चन पुट अप कीजिए. Yes, sir. The same question from me. Last January, the incident happened, which is just 50 kilometers away. There is NVS, Latur in Maharashtra. The 12-year girl, she attempted suicide, and her parents were alleged कि मतलब जो भी हुआ है, that is because of teacher harassed her, and it is sole responsibility of staff members and hostel members, and they protested in front of NVS. Suppose you are a teacher in the same school, what you would do? Unmute, Savita. Hello, ma'am. Yes. First of all, I will try to know the reason because if a teacher is scolding a student, तो स्टूडेंट सुसाइड नहीं कर सकते. इस ओनली स्कॉल्डिंग की वजह से कोई बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता. मेनी रीजंस हो सकते हैं. मे बी वो इमोशनली स्टेबल ना हो, घर का भी इन्वायरमेंट भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो बहुत स्ट्रेस होते हैं, फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता है. जैसे आजकल लाइक अगर बहुत हस्बैंड वाइफ वर्किंग, तो बच्चों को कहीं ना कहीं उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचर्स की वजह से ही सुसाइड करें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रिसेंट इंसिडेंट हो रहे हैं जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं. तो ओनली स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. और अगर ऐसा हो भी रहा है, मे बी इस मतलब क्या बोल सकते, स्कूल की वजह से बच्चे ने सुसाइड किया, तो मैं बाकी सभी टीचर से भी मैं
क्या बात करूंगी कि रीजन क्या है, क्या ऐसा क्या क्लासरूम में, या फिर उसको कोई बुलिंग कर रहा है, या फिर तो टीचर्स उसको कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं जिससे वो डिप्रेस फील हुई हो। तो मैं बात करूंगी। और एज अ टीचर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को बहुत इमोशनली स्टेबल बनाना है, कि उनको ये समझाना कि हर छोटी छोटी बातों पे हम लोग इस टाइप की स्टेप्स नहीं ले सकते। हम लोग का वर्क सिर्फ उनको एकेडमिक ही प्रोवाइड नहीं करना है ना, उनको इमोशनली स्टेबल भी बनाना है, कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फेस कर सके। कोई भी अगर मान लीजिए एग्जाम्स के फियर की वजह से भी कुछ बच्चे सुसाइड कर लें, इस टाइप के ना करें। इसलिए उनको हम लोग इमोशनली स्टेबल बनाना है, उन लोगों को कैसे स्ट्रेस से कोप अप करना है ये भी सिखाना है। दैट्स ऑल। Amrita want to add something? Yes, Amrita ji, you can add. जी सर। जी सर, एक एनवीएस और केवीएस में एक रूल है। मेरे बहन एनवीएस में है 3-4 साल से, तो मैं ये जानती हूँ ये सिचुएशन उन लोगों को हैंडल करना पड़ती है। तो कोई भी बच्चे से तो कुछ देर पहले क्वेश्चन था कि इमोशनली अटैचमेंट, कोई भी बच्चे से जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, क्योंकि वो बाहर से मम्मी पापा को छोड़कर आती है, तो कोई भी बच्चे से इमोशनली एंड पर्सनली, कोई भी टीचर कोई भी स्टाफ इमोशनली एंड पर्सनली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे को हम प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों से कोई भी इमोशनली एंड पर्सनली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये इंग्लिश का रूल्स है। आप जब उन लोगों का ट्रेनिंग होता है, उन लोगों को सिखाया है। Okay. और छोटे छोटे सिचुएशन के लिए काउंसलिंग के लिए एक अलग से टीचर नर्स रहते हैं। बच्चे को काउंसलिंग कंटिन्यूअस एंड वेरी फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन अगर कोई टीचर मेंटेन करके चले और उसके लैंग्वेज को और बोलने की थ्रोइंग को अगर सॉफ्ट और स्वीट रखे, तो ऐसा सिचुएशन अराइज नहीं होगा। Okay, ये very ऐसा good. सिचुएशन अराइज नहीं होगा। ये Wonderful. जी सर। Savita, have Yes, one sir. question for Shivani. ओके। हेलो मैम। Yes, ma'am. Ma'am, suppose in your school a sports competition is going to held. जो sports in charges is on holiday, and you have to organize this sport competition. Then how will you organize, and what will steps you take? Thank you, ma'am, for this question. Ma'am, if a sports competition is going to be organized in my school, there was many things which I have a duty to perform. For example, proper school management, matlab, proper food management for the students who are coming outside the school, and plus, ma'am, uh, hostel plus ma'am, hostel should be provided to those students who are coming from the outer states. जैसे जैसे मैम केवीएस में भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि मतलब अगर आपके रीजन में है तो और बाहर के रीजन से बहुत सारे बच्चे लेके आएंगे, तो उनके साथ एक स्कॉट टीचर होता है, प्लस उनके स्टूडेंट्स होते हैं। तो फिर उसके लिए प्रॉपर एक फूड कमेटी बनती है। तो मेरे को फूड कमेटी का चेक करना है कि कौन कौन से मेंबर है, प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, प्लस जो इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, इवेंट में सारी की सारी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है या फिर नहीं है। तीसरी चीज, रिजल्ट प्रॉपरली मैनेज है या फिर नहीं है। और चौथी चीज, बच्चों के रहने की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, उनके जो एस्कॉर्ट टीचर्स हैं उनकी रहने की सिचुएशंस कैसे हैं। और मैम नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज की सिक्योरिटी हर एक चीज की प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। और लास्ट और फॉरमोस्ट चीज कि मैम मेडिकल इमरजेंसी के केस में डॉक्टर्स और जो भी नर्सेज हैं वो सारी की सारी अवेलेबल होनी चाहिए। यस मैम, Okay, that's Shivani, it. have your question from Narayan. Yes ma'am. Okay. Hello sir. Hello, ma'am. हाँ सर, my question is कि sir, what are the drawbacks of 10+2 system which was resolved by 5+3+3+4 system?
according to you? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। 10+2 जो अपना एनएफी लास्ट था, मतलब जो सिस्टम में, उसमें कुछ ऐसा था मैम कि फाउंडेशनल स्टेज को कवर नहीं कर रहे थे। जो कि हमारे जो नया शिक्षा पद्धति आया, जिसमें 5+3+3+4 आया है, इसमें हमारे फाउंडेशनल स्टेज को शुरू से कवर किया जा रहा है, जिसमें बच्चे की बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ जो है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को 6 क्लास स्टैंडर्ड से वोकेशनल ट्रेनिंग को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही साथ मैम इसमें जो है सेकेंडरी स्टेजों को पूरा 4 स्टेज में बांट दिया गया। पहले जो है 2 स्टेज जो सीनियर सेकेंडरी में रखी गई थी 11th-12th को, इसमें 4 स्टेज में करने से पूरे समानता का एक प्रकार के डेवलपमेंट के लिए में किया गया है मैम। ओके। Okay, Mr. Narayan. Now I'm giving chance. You ask one question from Rekha. Yes, Mr. Narayan. Have one situation. हेलो रेखा मैम। हेलो सर। हाँ रेखा मैम, आप मुझे पोर्टफोलियो के बारे में बताएं मैम। यहाँ एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो जो है एक टीचर के लिए कैसे हेल्प करता है? सर पोर्टफोलियो में हम बच्चों की अचीवमेंट को दिखाते हैं सर, जैसे उसमें बच्चे ने क्या क्या उसकी गुड अचीवमेंट है सर। उसमें उसकी कोई फाइल हो सकती है सर, जिसमें उसने मतलब किसी टाइम उसने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई असाइनमेंट बहुत अच्छे से दिखाया हो, उसने मतलब किसी भी फील्ड में जो भी अच्छा काम किया है उसकी प्रोग्रेस को हम पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। और सर ये मतलब हम टीचर टू टीचर, अब जैसे बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो हम उसको प्रमोट भी करते हैं, ताकि जो टीचर है तो सर उसमें उसकी सिर्फ ओनली अचीवमेंट के ऊपर ही हम मतलब पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। उसकी जो भी बेस्ट उसने वर्क किए होते हैं उसको उसमें डाला जाता है। Okay, Rekha ji. Now you ask one question from Manjeet madam. ओके सर। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम आपकी क्लास मतलब आप पढ़ा रहे हो कुछ भी, और मैम पढ़ाते टाइम कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही है और बच्चे उस पर हंस रहे हैं, तो मैम आप मतलब कैसे बच्चों को समझाओगे? मिस्टेक मुझसे हो रही है? ओके। जी मैम। सबसे पहले तो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी बोलें या हम जो भी टीच करें उस पर ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो जो बच्चों के सामने हम मजाक बन जाएं। ऐसा होने से क्या हमारी जो उनके तरफ सम्मान है वो भी कम हो जाएगा, और जो बच्चों का ध्यान है वो पढ़ने की तरफ से बिल्कुल हट जाएगा, वो हमारी गलती पर ही ध्यान देंगे, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें उनको उस तरफ ले जाने की। अगर जो हमसे कोई भी गलती हुई है उसका मजाक बन रहा है तो हम उसी टाइम हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होने से हम बच्चों को ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमसे गलती होती है किसी से भी हो सकती है, चाहे वो कितने भी बड़े हों, चाहे हम तो टीचर हैं, हमसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो कोई भी हम किसी की भी उदाहरण दे सकते हैं, उनसे भी गलती होती है। और हम गलती करके ही सीखते हैं। हमसे जब कोई भी गलती होती है तो हम कुछ नया सीखते हैं, हमको सीखने से कुछ ना कुछ मिलता है, और हम उस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे हैं जो उनके सामने भी हमारा जो नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। और हम उसको अपना कंटिन्यू जो टीचिंग करनी जारी रखेंगे, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू मैम। Yes. हेलो स्मिता मैम। हेलो मैम। मैम जो स्क्रीन रीडर होता है उसमें अपनी एजुकेशन क्या काम आती है स्क्रीन रीडर में? अपनी जो बच्चों को एजुकेशन करवा रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उसमें स्क्रीन रीडर की क्या महत्व, उसके क्या महत्व है ये बता दो जी। आप हेल्प कर सकते हैं मैडम की। मैम आपको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? मैं क्लियर नहीं आवाज आ रही है। मैम स्क्रीन रीडर होता है जो, वो अपनी पढ़ाई में कैसे अपनी हेल्प कर सकता है स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए? हाँ, अब
रही हूँ। Yes, What is the use of screen reader? मैडम आप बता सकते हैं? Yes. सर स्क्रीन रीडर है ना, स्पेशली जो डिसेबल बच्चे होते हैं, screen हाँ जी, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए Poonam ज्यादा want to यूजफुल speak. रहेगा। Poonam, you want to answer? Poonam madam, would you like to answer? Yes, sir, I would like to answer, but Garima ma'am first. नो मैम, आप आंसर दीजिए। You can answer, madam. 1 minute you have. Speak fast, please. Thank you so much, ma'am, for this question. Screen reader mainly used for disabled children who have some different abilities, especially when we apply screen reader on the books or any notebooks on written paper. In that time, screen reader read loudly that written part so that we can listen it, especially students who are visibly impaired. Yes, ma'am. This instrument is useful for them. And new implemented books of NEP had all have symbols, and symbols are mainly used for this screen instrument. Thank you, ma'am. यस मैम, स्पेशली साथ में जो डिसेबल बच्चे जो जो देख नहीं सकते, वो स्क्रीन रीडर की हेल्प से सुन सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने जो नोट्स है वो एक वॉइस रिकॉर्डर वो सुन के अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन में भी स्क्रीन रिकॉर्डर का एक अच्छा महत्व है। Wonderful session it was. Really, all of you have participated. That's great. Okay, have a beautiful smile on your faces. Yes. So bye bye. See you. We'll meet again. Okay. Bye bye. Say bye. Thank you, sir. Bye bye, students. Take care. See you.